ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਯਰ YouTube ਚੈਨਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫੈਮਿਲੀ 87। ਸੋ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਗ੍ਰਾਮਰ ਬਾਈ ਜੌਨ ਈਸਟਵੁੱਡ। ਉਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਟੈਸਟ ਨੰਬਰ 23। ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਨਿਟ ਨੇ 132 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 136 ਤੱਕ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਲਗਭਗ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਡ ਸਪੀਚ ਹੈ, ਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ A ਪਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖਣੇ ਨੇ ਸਹੀ ਨੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟਿਕ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗਲਤ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਕਰੇ ਨੇ, ਰੂਲਸ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਊਂਗਾ। ਫਸਟ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯੂ ਪ੍ਰੋਮਿਸਡ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਵਾਅਦਾ ਕਰਿਆ ਸੀ ਯੂ ਵੁਡਨਟ ਬੀ ਲੇਟ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਗਿਆ, ਸੈਕੰਡ ਵਰਬ ਆ ਗਈ, ਆਬਜੈਕਟ ਆ ਗਿਆ, ਵੁਡਨਟ ਬੀ ਲੇਟ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ। ਅਗਲਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ, ਸੂਸਨ ਥਾਟ, ਜਿਹੜੀ ਸੂਸਨ ਹੈ, ਸੂਸਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਦੈਟ ਆਈ ਕਾਂਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵਟਸ ਹੈਪਨਿੰਗ, ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਟ ਹੈਪਨਿੰਗ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੈਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਖਤਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੈਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸੂਸਨ ਥਾਟ ਦੈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੈਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੀਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੈਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੀਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਹ ਸੂਸਨ ਨੇ ਖੁਦ ਕਹੇ ਨੇ, ਸੂਸਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਖੁਦ, ਆਈ ਕਾਂਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵਟ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਸੂਸਨ ਦੇ ਲਈ ਆਈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਆਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਇਸ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੈਟ ਲੱਗਦਾ, ਸੂਸਨ ਥਾਟ ਦੈਟ ਸ਼ੀ ਕਾਂਟ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਜੋ ਇਸ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸਪੀਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕੋਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੈਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੈਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਖਤਾ। ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਅੱਗੇ, ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਮੀ ਵਟ ਟਾਈਮ ਦ ਕੋਚ ਲੀਵ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਮੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਫਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਰੂਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਫ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸਮਝਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਦਾ ਜੇਕਰ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਆਪਣਾ 135 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 135 ਦਾ ਡੀ ਪਾਰਟ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕੁਡ ਯੂ ਟੈਲ ਮੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਡ ਯੂ ਟੈਲ ਮੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੂ ਯੂ ਨੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਡੂ ਯੂ ਨੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਕੋਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਸ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਹੈ। ਡੂ ਯੂ ਨੋ, ਹੁਣ ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਮੀ, ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਮੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਸ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਡ ਯੂ ਟੈਲ ਮੀ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਟੈਲ ਹੁੰਦਾ ਕੁਡ ਯੂ ਟੈਲ ਮੀ ਦ ਟਾਈਮ ਆਫ ਦ ਕੋਚ, ਫਿਰ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਮੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਖਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਦੇਖੋ, ਰੋਬਰਟ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਨੋ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਬਰਟ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਨੋ ਇਫ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਡ ਦ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇਨਕਲੂਡਡ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਨੇ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਵੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜੋ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰੋਬਰਟ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਨੋ ਇਫ ਡਿਡ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਸਾਥ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਫ ਡਿਡ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਡ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਇਫ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਖ ਲਵਾਂਗੇ,
है ना इफ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡਿਡ ਆਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਡਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਰਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਡਿਡ ਦ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇਨਕਲੂਡਡ ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਡ ਦਾ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਡਿਡ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਾਂਗੇ 135 ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥਰਡ ਦੇਖੋ ਐਨਾ इंसिस्टेड इंसिस्टेड ਹੁੰਦਾ जोर देना इंसिस्टेड मतलब कि किसी चीज़ को जोर दे के कहना एना इंसिस्टेड ऑन शोइंग अस एना ने जोर दिता कि सानू दिखाने के लिए हर फोटोज़ के अपनी फोटो दिखाने के लिए सानू जोर पाया कि मैं तुहानू अपनी फोटो दिखानी आ इस दे विच कोई प्रॉब्लम नहीं बिल्कुल सबजैक्ट आ गया वर्ब आ गई इत्थे अपना ये अपना प्रैपोजिशन आ गई शोइंग अगे मतलब जैरेंड आ गई शोइंग अस सानू दिखाने की हर फोटोज़ बिल्कुल करैक्ट है इस दे विच कोई कमी नहीं हैगी चौथा समवन आस्क्ड अस है ना समवन आस्क्ड अस किसी ने सानू पूछया वैदर या फिर दैट वी हैड ईटन लंच कि असी ने खाना खा लिया हुण देखो ये चौथा आपां ने चौथा करया होऊगा चौथा आपां ने 135 नंबर दे विच यस नो क्वेश्चन ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਯੈਸ ਨੋ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਮੀਦ ਯੈਸ ਅਤੇ ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਫ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੈਦਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੰਬਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਥੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ मतलब लंच कर लिया या फिर नहीं मतलब कि खा लिया या फिर नहीं जे आप दैट लाने तो यह मतलब तो स्टेटमेंट देनी होगी ਇਹਦਾ मतलब है होगा समवन आस्क्ड अस दैट वी हैड ईटन लंच कि असी किसी ने साडे तो पूछया कि असी खाना खा लिया मतलब कि दसता अगे दस रहा है पहला पूछ रहा है अगे दस रहा है दैट वी हैड ईटन लंच कि असी खाना खा लिया दस नहीं रहा ये पूछ रहा है वैदर वी हैड ईटन लंच कि असी खाना खा लिया मतलब अपना जिहड़ा अपना जवाब है वो यस या नो दे विच होऊगा तां करके इत्थे दैट नहीं आऊगा वैदर आऊगा दैट आपां अगे कढ के लिखांगे अगला पंजवा नैंसी टोल्ड मी नैंसी ने मैनू टोल्ड मी मतलब नैंसी ने मैनू दसिया शी हैड स्टार्टड अगर शी हैड स्टार्टड द जॉब द वीक बिफोर ये जेकर तुसी देखो अपना रिपोर्टेड स्पीच है नैंसी टोल्ड मी नैंसी ने मैनू दसिया उस तो बाद शी हैड ये नैंसी के लिए आप यूज़ किया है शी हैड मतलब कि कोमे हटा के चीज़ कही गई है शी हैड स्टार्टड द जॉब वीक बिफोर इत्थे जेकर दैट भी लगा दिए तो दैट भी गलत नहीं होगा बट इन्होंने पहला तो नहीं लगाया आपने कुछ एक्सट्रा लगाना नहीं जेकर एक्सट्रा है कुछ वाधू वो आपने कढ़ के लिखना है तां करके बिल्कुल ये करैक्ट है इस कोई गलती नहीं देखो अगले दे विच की है निगल सैड मी ही वांटेड टू कम विद अस निगल ने मैनू कहा कि वह साडे नाल आउणा चाहुंदा है एक चीज़ देखो छेवां है ये देखो छेवें दे विच मैं तुहानूं टैल अते से दे विच गल दसी थी आपां टैल दा यूज़ उदों करदे हां जदों आपां कोई लिसनर है हीयरर मतलब कि सुनने वाला हीयरर जिहड़ा कि सुनने वाला बंदा आपां उत्थे कोई रखीए कि हाँ आपां नूं कोई सुनने वाला हैगा फिर आपां टैल दा यूज़ करदे हां जेकर कोई बंदा आपां नूं सुनने वाला नहीं हैगा सुनने वाला कोई बंदा नहीं हैगा फिर आपां यूज़ करदे हां से दा हुण इत्थे देखो इत्थे कोई भी सुनने वाला बंदा जिहड़ा हो इत्थे अपने सॉरी इत्थे सुनने वाला बंदा जिहड़ा अपने रखिया मी रखिया इत्थे सुनने वाला बंदा तो इहदा मतलब इत्थे टैल होना चाहिए सी हुण इत्थे हैगा सैड जदों मतलब सैड हुंदा है तो जिहड़ा हीयरर है वो नहीं हुंदा जेकर इत्थे टोल्ड हुंदा फिर मी आ सकदा सी निगल टोल्ड मी निगल सैड मी नहीं आ सकदा तो इसलिए इत्थे मी नहीं हैगा इत्थे सिर्फ आएगा निगल सैड निगल ने कहा ही वांटेड टू कम विद अस कि साडे नाल आउणा चाहुंदा है जेकर टोल्ड हुंदा निगल टोल्ड फिर मी आउंदा इत्थे फिर मी आउंदा तां करके मी आपां अगे लिखांगे सतवां देखो माई फ्रेंड सैड शी डिड देखो इत्थे माई फ्रेंड शैड उदों बाद इत्थे माई फ्रेंड सैड तो बाद कोई भी इत्थे मी अस या नहीं हैगा ये बिल्कुल करैक्ट है इत्थे तक शी पर इस तो अगला देखो शी डिड लाइकड हर न्यू फ्लैट क्यों अपना नवा फ्लैट है जिहड़ा उसनूं पसंद करदे हुण डिड लग्या पिया और लाइकड डिड तो बाद वर्ब की फस्ट फॉर्म होंदी है हमेशा क्योंकि यह जिहड़ा अपना इनडायरैक्ट स्पीच है यह रिपोर्टेड स्पीच है ये प्रेजेंट इंडेफिनेट तो पास्ट इंडेफिनेट बनया होया शी लाइकड हर न्यू फ्लैट क्योंकि आपां नरेशन दे विच मैं तुहानूं पहलां भी कहा सी टेंस भी आपां चेंज करदे जदों आपां रिपोर्टेड स्पीच दे विच चेंज करदे कोमे हटा के तो उस तरह यह प्रेजेंट इंडेफिनेट तो पास्ट इंडेफिनेट होया है बट इत्थे डिड है जिहड़ा डिड नहीं है क्योंकि जेकर डिड लग गया तो फिर तो लाइक दा लाइक करना पैना सी है ना तां करके डिड नूं कढ के आप अगे लिखांगे ये बन जाएगा माई फ्रेंड सैड शी लाइकड हर न्यू फ्लैट अठवां मार्टिन आस्क्ड अस जिहड़ा मार्टिन है उसने साडे तो पुछया
मार्टिन ने साडे तो पूछिया आस्क्ड अस फॉर नॉट टू वेक द बेबी, मतलब कि बच्चे नूं ना उठाउण वास्ते। हुण देखो इत्थे प्रॉब्लम की है, 8वां देखो उस 8वां, वी कैन यूज द स्ट्रक्चर टेल आस्क समवन टू डू समथिंग। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮਾਰਟਿਨ ਆਸਕਡ ਅਸ, ਮਾਰਟਿਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨੋਟ ਟੂ ਵੇਕ ਦ ਬੇਬੀ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਉਠਾਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜੈਕਟ, ਫਿਰ ਆਸਕਡ ਜਾਂ ਟੋਲਡ, ਫਿਰ ਆਬਜੈਕਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਬਜੈਕਟ ਅਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ टू प्लस वर्ब की फस्ट फॉर्म होंगी है सीधा, उस तो बाद ऑब्जेक्ट, मतलब कि टू प्लस वर्ब की फस्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। जेकर नैगेटिव है तो पहला सब्जैक्ट, जिस तरह की मार्टिन आ गया, फिर आस्कड या टोल्ड आस्कड आ गया, फिर ऑब्जेक्ट जिस तरह की अस आ गया, फिर नॉट टू, नॉट टू देखो, फिर नॉट टू वर्ब की फस्ट फॉर्म, उस तो बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट। फॉर है जिहड़ा इत्थे ये रॉन्ग है, नहीं आएगा, इसलिए इसनूं आपां अगे कढ के लिख दिता। ये आप 136 नंबर के एक्सरसाइज जी उस करे नहीं। सो सारे ही जोड़े रूल्स ने वो आप पिछे कर चुके हैं। वैसे भी जो आप पढ़ते हैं, जो आप सेंटेंस पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ के भी पता चलता है कि आ चीज़ इतने रॉन्ग लगी हुई है। बट जेकर तुम एग्जैक्ट पता करना है रॉन्ग क्यों लगी हुई है, की कारण है, वैसे तो जोड़े कुछ मेन ने वो मैं तुम्हें लिख के इतने दसे भी ने बाकी इन्होंने सामने मैं लिखा हुआ है कि किहड़ा सेंटेंस किहड़ी एक्सरसाइज दे विचों है, उत्थे जाके तुसी उस दे रूल्स ने जिहड़े वो देख सकते हो। सो ये सी अपने इस टैसट का अपना पार्ट ए। एंड अगे देखो अपने इस टैसट का आप बी पार्ट है जिहड़ा वो करदे हां, बिल्कुल आसान है। सेंटेंस की सेंस है जिहड़ी समझ के तुहानूं ईजिली पता चल जाएगा कि आपां की पुट करांगे। हर एक सेंटेंस दे आपां नूं 4-4 ऑप्शन जिहड़े दिते गए ने, और आपां खाली जगह दे विच उन्हां 4 ऑप्शनस दे विचों एक ऑप्शन है जिहड़ा वो आपां मतलब कि उत्थे पुट करना है। सो देखो पहला देखो इस दे विच कह रहा है वट डिड दैट मैन से। वट डिड दैट मैन से ऑप्शन ने एट यू, मतलब कि इस तरह आऊगा वट डिड दैट मैन से एट यू। से एट यू मतलब एट तो आप जो किसी वाल देखने की गल करते हैं उदों लगाने, से एट यू किसी वाल कहना, एट यू आप नहीं लगा सकते। से फॉर यू तुहाडे बारे है ना, से टू यू या फिर यू। जो आप किसी कोई गल कहने, किसी परसन को डायरैक्ट कहने, उत्थे आप टू का यूज़ करते हैं, टू यू, आई एम टेलिंग टू यू, है ना, तो उत्थे आप टू का यूज़ करते हैं, तो टू यू, क्योंकि आप टू का यूज़ करांगे। वट डिड दैट मैन से टू यू, कि वो आदमी थोनों की कह रहा सीगा। पहला देखो हुण आई रैंग माई फ्रेंड इन ऑस्ट्रेलिया येस्टरडे, कल मैं मतलब बीते हुए समय की गल हो रही है, कल मैं अपनी दोस्त नूं ऑस्ट्रेलिया दे विच फोन किया। एंड शी सैड, तो उसने कहा, देखो शी सैड पास्ट की गल है, सैड कहा उसने, इट रेनिंग देयर, सी सैड इट रेनिंग देयर, मतलब कि इज तो आ नहीं सकता, पास्ट की गल है। शुड, इट शुड रेनिंग देयर, नहीं ये भी नहीं आ सकता। टू बी रेनिंग देयर, नहीं। इट वॉज रेनिंग देयर, मतलब कि उत्थे बरखा पै रही सी, इट वॉज रेनिंग देयर। ये तुसी अपने आप आसानी दे नाल लगा सकते हो, बिल्कुल फिट होएगा। जेड़ा मतलब सही आउंदा होवेगा ना, बिल्कुल सेंस उसदी ही सही बनती होगी। देखो द लास्ट टाइम आई सॉ जोनाथन, लास्ट टाइम जो मैं जोनाथन नूं मतलब कि मिलिया या देखिया, ही लुकड वेरी रिलैक्सड, वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स दिखाई दिंदा सीगा। ही एक्सप्लेनड, उसने एक्सप्लेन किया दैट ही हैड बीन ऑन हॉलीडे, कि वो हॉलीडे दे उपर सीगा द वीक। देखो ही एक्सप्लेनड दैट ही हैड बीन ऑन हॉलीडे, मतलब कि हैड बीन ऑन हॉलीडे मतलब कि हॉलीडे जिहड़ा समा लंघ चुकिया उस समय की गल कर रहा है कि मैं छुट्टियां दे उपर सी, छुट्टियां दे उपर हाँ या छुट्टियां दे उपर होवांगा नहीं, छुट्टियां दे उपर सी। हुण इत्थे देखो अर्लीयर, हुण इत्थे द अर्लीयर वीक, अर्लीयर वीक नहीं आ सकता, अर्लीयर वीक का कोई सेंस ही नहीं। फॉलोइंग वीक आने वाला हुंदा है, नैक्सट भी आने वाला हुंदा है, प्रीवियस वीक हुंदा है पिछला। देखो इत्थे आपां प्रीवियस, क्योंकि उसने कहा मैं छुट्टियां दे उपर सी, प्रीवियस वीक पिछले हफ्ते मैं छुट्टियां दे उपर सीगा। अगला देखो थर्ड, आई वंडर द टिकट्स आर ऑन सेल येट, कहना मैं हैरान हाँ कि हले भी टिकटां बिकी जा रही ने। देखो वट तो नहीं सकता, आई वंडर वट द टिकट, वट द टिकट जिहड़ा की हुंदा है, जिहड़ा आपां कहा है कि मैं हैरान हाँ कि हजे भी टिकटां बिकी जांदियां, जिहड़ा ये के है, क्योंकि वट दा की दा मतलब हुंदा है कि की, मतलब कि आप किसी तो जवाब ले रहे हैं कि की बिक रही ने, तो उत्थे वट आऊगा, बिल्कुल नहीं आ सकता। वैन भी रॉन्ग है, वेयर के टिकटां कित्थे बिक रही ने, नहीं। वैदर
ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੈਦਰ ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਟਿਕਟਾਂ ਵਿਕੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੈਦਰ ਦਾ ਟਿਕਟਸ ਆਰ ਔਨ ਸੇਲ, ਵੀ ਹਲੇ ਵੀ ਟਿਕਟਾਂ ਸੇਲ ਤੇ ਨੇ। ਚੌਥਾ, ਆਈ ਟੋਲਡ ਯੂ ਸਵਿਚ ਆਫ ਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਿਡਨਟ ਆਈ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਿਚ ਆਫ ਦ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਿਚ ਆਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਡੋਂਟ, ਆਈ ਟੋਲਡ ਯੂ ਡੋਂਟ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਡੋਂਟ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਵਾਲਾ। ਅੱਗੇ ਨੋਟ ਕੱਲਾ, ਆਈ ਟੋਲਡ ਯੂ ਨੋਟ ਸਵਿਚ ਆਫ ਦਾ, ਨੋਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਨੋਟ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਪੋਸੀਬਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਨੋਟ ਟੂ ਨੋਟ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਟੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ। ਨੋਟ ਟੂ ਆਏਗਾ, ਟੂ ਨੋਟ ਨਹੀਂ, ਨੋਟ ਟੂ ਸਵਿਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਕਹਾਂਗੇ ਟੂ ਨੋਟ ਸਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਨੋਟ ਟੂ ਸਵਿਚ, ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਇਕੱਠਾ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਵਾਂ, ਸੰਬਨ ਮੀ देयर हैज़ बीन एन एक्सीडेंट ऑन द मोटरवे, मतलब कि किसी ने मैनूं दस्सिया कि एक्सीडेंट हो रहा। देखो आस्क दा हुंदा पुछना, नहीं आएगा। सैड स्पोक, देखो स्पोक भी नहीं आएगा, स्पोक हुंदा बोलना, किसी ने मैनूं बोलिया नहीं, किसी ने मैनूं दस्सिया। सैड ते टोल्ड दे विच कई बंदे कन्फ्यूज हो सकते हैं। हुण इस दे विच कन्फ्यूजन नहीं हैगी, क्योंकि ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਸਨਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ, ਦੇਖੋ ਲਿਸਨਰ ਮੀ ਵੀ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਲਿਸਨਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੈਲ ਫਾਰਮ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਟੈਲ ਟੋਲਡ। ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਲਿਸਨਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਵਨ ਆ ਮੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, देयर हैज़ बीन एक्सीडेंट, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੈਡ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਜੇਕਰ ਲਿਸਨਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟੈਲ, ਸੇ ਨਹੀਂ, ਸੇ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿਣਾ ਔਰ ਟੈਲ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸਣਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਟੋਲਡ। समवन टोल्ड मी, किसी ने मैनू दस्सिया। छेवां, वैन आई रैन टीसा, रैन इत्थे रैंग आएगा, सॉरी, वैन आई रैंग टीसा मतलब कि कॉल करी। वैन आई रैंग टीसा सम टाइम लास्ट वीक, जो कुछ बार मैं मतलब कुछ पिछले वीक मैं कुछ क बार जो उसने रिंग की टीसा नूं मैं कई बार मतलब रिंग की सम टाइम। शी सैड, उसने कहा शी वॉज बिजी डे, मतलब कि उस दिन उसने कहा कि उस दिन वह बिजी है। हुणे लंघे हुए दिन की गल है, लंघे हुए दैट द, देखो द डे, शी वॉज बिजी द डे बिल्कुल करेक्ट। बिजी दैन डे नहीं, बिजी दिस डे, क्योंकि तो पास्ट है, दिस डे नहीं हैगा, इसलिए सिर्फ बचिया दैट, बिजी दैट डे। भी मतलब मैं लास्ट वीक जो भी उसनूं कॉल की, उसने मैनूं कहा कि उस दिन वो बिजी है, मतलब कि लंघे हुए समय की गल आ रही है, दैट डे। सतवां, वैन ही वॉज एट ओलिवर्स फ्लैट यैसटरडे, जो कल वो ओलिवर के फ्लैट के विच सीगा यैसटरडे कल। मार्टिन आस्कड, मार्टिन ने पूछा इफ ही यूज द फोन, कि वो फोन यूज कर सकता है, कर सकना, कोई चीज़ कर सकना, और यह कर सकना पास्ट की गल कही सी उसने, मतलब कि उसने पूछा, आस्कड पिछले समय दे विच पूछा। कैन तो प्रेजेंटली हुंदा है, बिल्कुल नहीं। मे तो हुंदा जे शायद, इफ ही मे भी जेकर वो फोन कर सकता है, किसी को संभावना दसनी, या मस्ट भी जरूर करना चाहिए, नहीं उसने पूछा। मस्ट का हुंदा भी जरूर आप किसी को आदेश दईए भी तेनों जरूर फोन करना चाहिए, तो मस्ट नहीं, आस्कड पूछा ही कुड, इफ ही कुड यूज द फोन, कि वो फोन यूज कर सकता सी, तो कुड आ गया थे। अठवां, जूडी गोइंग फॉर अ वॉक बट नो वन एल्स वांटेड टू, पर होर कोई भी नहीं जाना चाहता सी, बट जूडी है जी, जूडी ने की किया, जूडी एडमिटेड तो होंगे कोई चीज़ एडमिट करना, स्वीकार करना, और ऑफर किसी को ऑफर करना, और प्रॉमिस। जेकर देखिए खाली थां तो बाद इत्थे जैरेंड है, गोइंग आई फॉर्म है जी अपने तो बाद सुजैसट फॉर्म है जी वो लैंदी है, सुजैसट, तां करके इसने सुजैसट किया, जूडी सुजैसटेड, मतलब कि इसने सलाह दी कि आपां गोइंग फॉर वॉक लिए चलीए, बट नो वन एल्स वांटेड टू, पर कोई भी नहीं चाहता सीगा, पर इन्हां दे विचों कोई फिट नहीं है। जब आप कहांगे जूडी ऑफर्ड गोइंग फॉर अ वॉक, ऑफर किया उसने, ऑफर नहीं किया,
ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ B। ਐਂਡ ਅਗੇ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦਾ ਆਪਾਂ D ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। E ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, D ਕਰਾਂਗੇ, A B ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ D ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕੰਪਲੀਟ ਈਚ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਲੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਆਈ ਐਮ ਰੀਅਲੀ ਟਾਇਰਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਵੈਨ ਆਈ ਸੌ ਪੋਲੀ ਯੈਸਟਰਡੇ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੰਪਲੀਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ ਈਚ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਾय ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਪਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੀਚੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। what was said to you yesterday, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ yesterday ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਉੱਪਰਲੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਵਾਲਾ ਉੱਪਰਲਾ, ਆ ਨਿਚਲੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਉੱਪਰਲਾ, ਇਧਰੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਦਾ, ਇਧਰੋਂ ਦ ਟਵਿਨਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਕਹੀਆਂ ਸੀ yesterday, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਫਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀ ਹੈ ਇਹ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਆਈ ਐਮ ਰੀਅਲੀ ਟਾਇਰਡ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਉੱਪਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਕੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਈ ਐਮ ਰੀਅਲੀ ਟਾਇਰਡ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਵੈਨ ਆਈ ਸੌ ਪੋਲੀ ਯੈਸਟਰਡੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪੋਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਯੈਸਟਰਡੇ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਯੂਜ਼ ਸੈਡ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਚੇਂਜ ਦਾ ਟੈਂਸ ਇਨ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟਡ ਸਪੀਚ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਨਰੇਸ਼ਨਸ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਪਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਗਏ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਖੁਦ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਕੰਮ, ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਓਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੈਨ ਆਈ ਸੌ ਟੀਸਾ ਯੈਸਟਰਡੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਟਰਕਚਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੀ, ਸ਼ੀ ਜਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੋਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਆਈ, ਇਹ ਟੀਸਾ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਆਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਗਲ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਆਈ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦ ਟਵਿਨਸ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂ ਸ਼ੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸ਼ੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਲੜਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੱਸ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਸੈਡ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੈਡ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਸੈਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੱਸ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਹੀ, ਸ਼ੀ, ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ, ਫਿਰ ਸੈਡ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੈਂਸ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਟੈਂਸ। ਔਰ ਚੇਂਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੋਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ ਪਾਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਇਹ ਵਿਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਵਿਲ ਦਾ ਵੁੱਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ, ਪਾਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ ਨੋ ਚੇਂਜ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ ਨੋ ਚੇਂਜ। ਜੇ ਕੈਨ ਹੈ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੁੱਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾਈ ਹੈ ਮਾਈ, ਤਾਂ ਮਾਈ ਦਾ ਹਿਜ਼ ਜਾਂ ਹਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹਿਜ਼ ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਾਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਲੜਕੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ।
जेकर माई मान लो फॉर एग्जाम्पल प्लूरल दे ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ देयर कर सकते हैं, ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ देयर भी कर सकते हैं देयर। सो ये चीज़ याद रखनी है। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਬਸ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕੋਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਮਝੋਗੇ। ਦੇਖੋ ਪੋਲੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਲੜਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਆਈ ਐਮ ਰੀਅਲੀ ਟਾਇਰਡ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਟੈਂਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟੈਂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਨੋਟ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੋਲੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਆਈ ਐਮ ਰੀਅਲੀ ਟਾਇਰਡ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪੋਲੀ ਨੇ ਕੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰੇ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਵੈਨ ਆਈ ਸੌ ਪੋਲੀ ਯੈਸਟਰਡੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੋਲੀ ਨੂੰ ਕੱਲ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਈ, ਤਾਂ ਆਈ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹੀ ਦਾ ਸ਼ੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਲੜਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਕਹਾਂਗੇ ਸ਼ੀ। ਆਪਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਡ, ਸ਼ੀ ਸੈਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਬਟ ਇਸ ਟੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਟੈਂਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਰੀਅਲੀ ਟਾਇਰਡ, ਤਾਂ ਆਈ ਐਮ ਹੈ ਤਾਂ ਐਮ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਜ਼ ਐਮ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵਾਜ਼ ਵਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰੇ ਸ਼ੀ ਸੈਡ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆਏਗਾ ਸ਼ੀ, ਸ਼ੀ ਸੈਡ, ਸ਼ੀ ਤਾਂ ਐਮ ਦਾ ਵਾਜ਼, ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਟਾਇਰਡ। देखो आई होप कि तुहानूं कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसनूं बनाउण दे विच, बिल्कुल आसान है। अपना देखो खुद भी बना के देखो, बाकी आपां बनाउणे। हुण टीज़ा, टीज़ा भी अपने लिए लड़की है। टीज़ा कह रही है आई फील क्वाइट एक्साइटेड, आई फील क्वाइट एक्साइटेड, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करदी हाँ, है ना। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੈਨ ਆਈ ਸੌ ਟੀਜ਼ਾ ਯੈਸਟਰਡੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕੱਲ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਆਈ ਹੈ, ਆਈ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹੀ ਦਾ ਸ਼ੀ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹ ਲੜਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਇਸ ਦਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸ਼ੀ। ਸੈਡ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣੀ ਲਾਉਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੀ ਸੈਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸ਼ੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਟੈਂਸ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਂਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਆਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸ਼ੀ ਸੈਡ, ਸ਼ੀ ਤਾਂ ਫੀਲ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਫੈਲਟ, ਸ਼ੀ ਫੈਲਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਕੁਆਇਟ ਐਕਸਾਈਟਡ, ਕੁਆਇਟ एक्साइटेड। ले ये आंसर आ गया, बिल्कुल आसान है। अगला देखो निगल, निगल अपने लिए लड़का है, तो निगल कह रहा आई कांट रिमेंबर द कोड वर्ड, मैं कहता कोड वर्ड याद नहीं रख सकता, ठीक है ना। हुण देखो आपां ये गल कह रहे, आपां नूं इसने कल कहा थी वैन आई सॉ निगल यैसटरडे, जदों मैं कल निगल नूं मिलिया, तो उस तो बाद आई दा की करांगे आपां ही, क्योंकि एक लड़का है। ही सैड, ही सैड, दोबारा फिर ही आएगा, ही सैड ही। हुण इत्थे कांट है, कांट है, ये कोई मतलब टेंस नहीं हैगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट या कुछ भी, ये मतलब अपना मॉडल हेल्पिंग वर्ब है कांट। तो कैन दा आपां करदे हां कुड, तो कांट दा कुडंट। ही सैड ही कुडंट, ही कुडंट। बाकी सारा रिमेंबर द कोड वर्ड, रिमेंबर द कोड वर्ड, कोड वर्ड। ये देखो आंसर आ गया, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखो रॉबर्ट, रॉबर्ट भी अपने लिए एक लड़का है। रॉबर्ट अपन को कल कहा रॉबर्ट ने आई वॉन्ट बी, वॉन्ट मतलब कि विल नॉट, आई वॉन्ट बी एट द नैक्सट मीटिंग, कहना मैं अगली मीटिंग दे विच नहीं होवांगा, आई वॉन्ट बी एट द नैक्सट मीटिंग। हुण आपां ने कहा वैन आई सॉ रॉबर्ट यैसटरडे, जदों कल मैं रॉबर्ट नूं है ना देखिया जां मिलिया, तो आई दा आपां करांगे ही, क्योंकि लड़का है। ही तो बाद सैड भी आएगा, ही सैड, दोबारे फिर ही, क्योंकि वही है। ही सैड ही, तो विल नॉट दा आपां की करांगे, विल दा आपां वुड करदे हां, तो विल नॉट दा वुडंट, मतलब कि वुडंट। ही सैड ही वुडंट, बाकी सारा सेम आ जाएगा। ही वुडंट बी एट द
ही वुडंट बी एट द नेक्स्ट मीटिंग, एट द नेक्स्ट मीटिंग। देखो आई होप कि हुण तां सारे समझ आउण लग पे। देखो चौथा द ट्विंस, हुण ट्विंस ने जिहड़े मतलब दो जने ने द ट्विंस, तां करके ये दो ने, तां कह रहे ने वी हैव गॉट अ प्रॉब्लम, वी हैव गॉट अ प्रॉब्लम मतलब सानू प्रॉब्लम आ रही है। हुण वी है, वी दा आपां की करांगे दे, क्योंकि एक तो ज़्यादा नहीं, तां आपां इत्थे इहदे उरे दे लावांगे। वैन आई सॉ द ट्विंस यैसटरडे, जो असीं ट्विंस नूं मिले यैसटरडे तो उन्होंने की कहा दे सैड, तां आएगा ही आएगा दे सैड। हुण दोबारा फिर दे, इत्थे भी उही मैं तुहानूं कहा सी दे सैड दे। हुण अगे की करांगे, ये की कह रहे ने, कहंदे आपां दे तां लाता वी दा, ये कहंदे दे हैव गॉट अ प्रॉब्लम। दे हैव गॉट अ प्रॉब्लम मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज़ है वर्ब दी थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट जो परफेक्ट आप पास्ट परफेक्ट बनावांगे। पास्ट परफेक्ट मतलब कि पहला सबजैक्ट दे आई गया, उस बाद हैड प्लस वर्ब दी थर्ड फॉर्म, तो इत्थे दे हैड गॉट इस तरह आ जाएगा क्योंकि थर्ड फॉर्म सी। दे हैड गॉट अ प्रॉब्लम, दे हैड गॉट अ प्रॉब्लम, ये अपना देखो इसका आंसर हो गया। वैन आई सॉ द ट्विंस यैस्टरडे दे सैड दे हैड गॉट अ प्रॉब्लम। अगे नैक्सट फिफ्थ एग्जाम्पल देखो, इस की कह रहा है माइकल। माइकल की कह रहा है, माइकल एक लड़का है, तो माइकल कह रहा है आई हैव बीन स्विमिंग, आई हैव बीन स्विमिंग। तो आप की कह रहे हैं वैन आई सॉ माइकल यैस्टरडे, जो मैं कल माइकल नूं मिलिया। देखो आई है, माइकल एक लड़का है, तो आप ही तो बाद सैड, ही सैड दोबारा फिर ही। हुण आपां टेंस चेंज करांगे, टेंस किहड़ा आई हैव बीन स्विमिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूज है, आई हैव बीन स्विमिंग। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूज की हुंदा है हैड बीन वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म दे नाल ING, तो आएगा यैस्टरडे व्हेन आई सॉ माइकल यैस्टरडे ही सैड ही हैड बीन स्विमिंग, ही हैड बीन स्विमिंग। देखो ये बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया। अगला योर फ्रेंड्स, थोड़े दोस्त एक तो ज्यादा ने, ये कहने वी वुड लाइक टू बी इन द शो, असी भी मतलब इस शो दे विच मतलब आना पसंद करते हैं, है ना, इस शो दे विच होना सानू भी पसंद है। तो हुण देखो वी आ गया, वी नाल दे, तो इत्थे आपां कहे व्हेन आई सॉ माई फ्रेंड्स यैस्टरडे दे सैड दोबारा फिर अगे दे सैड दे। हुण देखो आपां की करना है, इन्होंने कहा वी वुड लाइक, आपां विल दा वुड कर देना, जेकर पहला तो वुड है तो उसनूं एज इट उस तरह वुड ही रखना, तो आपां इहनूं कहांगे दे सैड, वी दा दे बन गया दोबारा दे, वुड लाइक टू बी इन द शो, बिल्कुल सेम आ जाएगा वुड लाइक टू बी इन द शो, बाकी सारा सेम एग्जैक्ट, बिल्कुल आंसर एग्जैक्ट है। अगे एडारियन मतलब नाम है, लड़के का नाम है। आप ये कह रहे आई डोंट नीड एनी हैल्प, मैनू किसी मदद की जरूरत नहीं। आई है तो एक लड़का आप ही तो आप कह रहे व्हेन आई सॉ एडारियन यैस्टरडे ही सैड दोबारा फिर ही। हुण आपां ये की है आई डोंट नीड एनी हैल्प, प्रेजेंट इंडेफिनेट है, डोंट आ गया, तब पास्ट इंडेफिनेट नेगेटिव, तो ये डोंट है उस डिडंट, तो बन गया ही didn't need any help, he didn't need any help। अगला लास्ट अठवां सूसन मतलब एक लड़की है, तो की कह रही है माई सिस्टर इज कमिंग टू सी मी, कहनी मेरी सिस्टर मैनू मिलन आ रही है। देखो जेड़े ये गल जी कही, ये शब्द जेड़े कहे ये सूसन ने कहे, मतलब कि इत्थे आई है जी वो लगभग मिसिंग, मतलब कि मिसिंग है, आप कह सकते इनविजिबल है, बट आपां ऑबवियस है ये गल, आप श्योर हाँ कि जेडे ये शब्द कहे ने सूसन ने कहे ने, क्योंकि दस्या गया, क्योंकि इत्थे सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ कोई भी बंदा ਜਿਹੜਾ कोई स्टेटमेंट दे रहा सी वो खुद आप दे रहा सी, जिस तरह एडारियन कह रहा सी आई मैं, तो सूसन कह रही है इत्थे कि माई सिस्टर, मतलब कि अपनी सिस्टर के बारे दस रही है बट गल खुद कह रही है, इसलिए इत्थे जिहड़ा पहला सबजैक्ट आएगा वो सूसन ही होएगा, मतलब कि आपां इत्थे सूसन पहला यूज कर चुके हैं, इत्थे आपां शी दा यूज करांगे। वैन आई सॉ सूसन यैस्टरडे शी, क्योंकि ये जिहड़े शब्द कहे ने सूसन ने कहे ने, शी सैड सूसन ने कहा, हुण जो कुछ उसने कहा वो लिखांगे आपां, शी सैड उसने की कहा माई सिस्टर, है ना, माई सिस्टर मतलब कि
माई दा आपां कर देंगे हर, क्योंकि लड़की है सूसन। हर सिस्टर, शी सैड हर सिस्टर, हर सिस्टर। उस तो बाद इज कमिंग टू सी, मतलब प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस आप पास्ट कॉन्टीन्यूस कर देंगे, वॉज कमिंग टू सी। इत्थे कमिंग टू सी मी, ये खुद इस ने कहा कि मैनू मिलण आ रही है, कमिंग टू सी मी। आप मी का की कर देंगे, आप मी का कर देंगे शी सैड हर सिस्टर वॉज कमिंग टू सी हर, क्योंकि उसनू मिलण आ रही है। क्योंकि आप दोबारे मी थोड़ी ना कहांगे, ये आप उस दे लिए बोल रहे हैं कि उस दी सिस्टर उसनू मिलण आ रही है। इत्थे इसने खुद कहा सी कि मेरी सिस्टर मैनू मिलण आ रही है, आप कहा उस दी सिस्टर हर सिस्टर उसनू मिलण आ रही है, तो इत्थे इसलिए आपने हर दा यूज है वो करिया। सो सिर्फ समझण दी गल है, जेकर तुसी आराम नाल दिमाग दे नाल समझोगे कित्थे की यूज़ करना है, पंजाबी दे विच बना के देखोगे तो आराम दे नाल तुसी इन्हां नूं बना सकोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो इस ही अपने इस टेस्ट का अपना पार्ट डी। एंड अगे नैक्सट देखो अपने इस टेस्ट का लास्ट पार्ट है जिहड़ा वो आपां करन जा रहे हां। सो इस दे विच की है, जिन्नियां भी आपां ने पिछे 132 तो लैके 136 दे तक यूनिट्स कीतियां ने, उन्हां सारियां दे रूल्स ने जिहड़े इस दे विच अप्लाई होए ने, वो तुसी ध्यान नाल मतलब कि याद रखना है। कुछ जिहड़े इंपॉर्टेंट ने वो मैं इत्थे लिख के भी तुहानूं मतलब कि दस दित्ते ने कि जिन्हां सेंटेंसेस दे विच किहड़े-किहड़े रूल्स ने जिहड़े अप्लाई होए ने। सो देखो जिस तरह की बनया होया पहला इन्हां ने बनाया, हालांकि आपां सारे ही बना दित्ते ने। किस तरह बने ने देखो, इस दे विच की कह रहा है, एना टू जैनट, मतलब जी एन है वो जैनट नूं कह रही है। दूसरे दे विच रॉबर्ट है, जिहड़ा रॉबर्ट बोल रहा है, मतलब किसी नूं बोल रहा है जिसनूं वो इत्थे मैंशन नहीं कीता। अगले च अ पुलिसमैन टू क्रिश्चन नूं बोल रहा है, अगे टीसा बोल रही है कुछ भी है ना, डारिन बोल रहा है, अगे सिमन टू सूसन, मतलब इस तरह बोल रहे हैं। हुण आपां ने जो बनाउणा सब तो पहला स्ट्रक्चर आपां ने सब्जैक्ट का यूज़ करना है। सब्जैक्ट के जिहड़ा बंदा बोल रहा है, मतलब कि ये सारे जिहड़े अगे ने ये बोल रहे हैं सारे खुद। जिस तरह मार्टिन बोल रहा है नैंसी नूं, बोलने वाला कौन है मार्टिन। इत्थे पीटर है, कल्ला ही पीटर बोल रहा है। सब तो पहला सब्जैक्ट आप यूज़ करांगे जो बोल रहे हैं। उस तो बाद जिहड़ी वर्ब है ये आप ब्रैकेट वाली वर्ब यूज़ करांगे जो इन्होंने ब्रैकेट दे विच दित्ती है, और उसकी पास्ट फॉर्म यूज़ करनी है। जिस तरह रिमाइंड है रिमाइंडड, आस्क है आस्कड, टेल है तो टोल्ड, इस तरह अपने यूज़ करनी ने। पास्ट फॉर्म हो गई यूज़। उस तो बाद जेकर ऑब्जैक्ट है फिर आप ऑब्जैक्ट, मतलब कि किसनूं ये गल किसनूं रिमाइंड किसनूं कराया गया है, आस्क किसनूं कहा गया, किस तो पूछा गया, टेल टोल्ड किसनूं कहा गया, तो ऑब्जैक्ट आऊगा। उस तो बाद बाकी सेंटेंस है जिहड़ा उसनूं आपां रिपोर्टेड स्पीच के मुताबिक चेंज कर देंगे। मतलब कि जिहड़े रिपोर्टेड स्पीच के चेंजेस होंदे ने, कैन का जिस तरह कुड हो जाता है ना, विल का वुड हो जाता है, या फिर जिस तरह माई का हिज हो जाता है, मी का हिम या हर हो जाता है। इस तरह वो आपां सारे चेंजेस ने जिहड़े वो आपां करांगे। हुण देखो इस दे विच करना कि इन्होंने कहा रिपोर्ट द सेंटेंस, सेंटेंस ने जिहड़े उन्होंने रिपोर्ट करो, ये खुद इन्होंने लिखे ने, अगे आपां रिपोर्ट करनी है उन्होंने सेंटेंसेस की। दे वर ऑल स्पोकन लास्ट वीक, ये सारे जिहड़े सेंटेंस ने ये लास्ट वीक पिछले हफ्ते बोले गए सी, है ना। यूज द वर्ब्स इन ब्रैकेट, ब्रैकेट दे विच वर्ब है जिहड़ी उसनूं यूज करो। बस हुण आपां बनाउंदे जाना। देखो इस दे विच की कह रहा है, एना टू जैनट, जिहड़ी एन है वो जैनट नूं कह रही है, की कह रही है, डोंट फॉरगेट टू साइन द फॉर्म, मतलब कि फॉर्म ते साइन करवाना ना भुल्ली। मतलब डोंट फॉरगेट टू साइन द फॉर्म, मतलब कि फॉर्म ते साइन करना ना भुल्ली, सॉरी फॉर्म ते साइन करना ना भुल्ली। हुण ब्रैकेट दे विच दित्ती आपां नूं रिमाइंड, कहण दा मतलब हुण आपां इह कहांगे कि एना ने जैनट नूं रिमाइंड याद करवाया। की याद करवाया? फॉर्म उपर साइन करना। हुण आपां इसनूं बनावांगे, देखो एना सब तो पहला सब्जैक्ट आ गया एना, एना ने रिमाइंड करवाया, सब तो पहला वर्ब दी पास्ट फॉर्म रिमाइंडड, एना रिमाइंडड। हुण रिमाइंडर एना ने किसनूं रिमाइंड कराया, ऑब्जैक्ट अपने लवे हैगा जैनट, जैनट इत्थे तक आ गया। हुण अपने वर्ब दी फॉर्म है रिमाइंड। देखो ये पढ़ो, आपां ने 136 नंबर जिहड़ी एक्सरसाइज है उस दे विच कीता सी, वी कैन आल्सो यूज एन ऑब्जैक्ट, मतलब कि असीं ये स्ट्रक्चर यूज करते हैं। ऑब्जैक्ट मतलब कि पहला सब्जैक्ट ते वर्ब तां हो गई, सब्जैक्ट अते वर्ब तां हो गई, उस तो बाद पहला ऑब्जैक्ट का यूज़ करते हैं, फिर टू इन्फिनेटिव का, टू प्लस वर्ब की फस्ट फॉर्म का, उस तो बाद आफ्टर एडवाइज, मतलब कि ये जिहड़ा स्ट्रक्चर है ऑब्जैक्ट प्लस टू इन्फिनेटिव, ऑब्जैक्ट तो बाद टू इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं आफ्टर इन्हां वर्ब्स तो बाद। जेकर एडवाइज, इनवाइट, रिमाइंड, वार्न, जिस तरह अपने लवे इत्थे
रिमाइंड है। इसे तरह का स्ट्रक्चर आप रिपोर्टेड जेकर किसी को ऑर्डर या फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं है ना, वी कैन यूज़ द स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर आप यूज़ करते हैं जेकर किसी को ऑर्डर कर रहे हैं या किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब कि टैल या आस्क होवे संबन, आप किसी को कुछ पूछ रहे हाँ किसी तो संबन तो, या टैल किसी को कुछ दस रहे हाँ, उस तो बाद भी आप टू डू मतलब कि टू इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं समथिंग, उस तो बाद कुछ समथिंग होर आ जाता है। दोवां दे विच लगभग सेम स्ट्रक्चर है। तो रिमाइंड है ये तो आप करांगे ऑब्जैक्ट, ऑब्जैक्ट तो बाद टू इन्फिनेटिव, मतलब कि एना रिमाइंडड जेनथ ऑब्जैक्ट आ गया, उस बाद टू इन्फिनेटिव टू साइन, उसने रिमाइंड की कराया उसनू साइन द फॉर्म, टू साइन द फॉर्म, फॉर्म के उपर साइन करने के लिए उसनू याद करवाया। अगला देखो रॉबर्ट, रॉबर्ट की कह रहा है वट टाइम विल द ऑफिस क्लोज दिस ईवनिंग, इस ईवनिंग जिहड़ा ऑफिस है कदों क्लोज होगा, इंटैरोगेटिव है। हुण एक गल इत्थे होर भी याद रखनी है, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਪੋਰਟਡ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਫਰਮੇਟਿਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਬਜੈਕਟ ਜਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। मतलब कि आप इसनूं इंटैरोगेटिव तो अफर्मेटिव बनाना। अफर्मेटिव की हुंदा तुहानूं पता है। हुण रॉबर्ट बोल रहा है कहना वट टाइम विल द ऑफिस क्लोज दिस ईवनिंग, इस ईवनिंग जिहड़ा ऑफिस मतलब किन्ने बजे क्लोज होगा। उत्थे है आस्क, हुण आपां कहांगे कि रॉबर्ट ने पुछया कि ऑफिस किन्ने बजे बंद होवेगा। तो देखो रॉबर्ट सब तो पहला सब्जैक्ट आ गया, आस्क आस्कड, रॉबर्ट आस्कड, हुण ऑब्जैक्ट कोई है नहीं। हुण रॉबर्ट ने जो पूछा आप सारा वो दस देंगे। रॉबर्ट ने की पूछा वट टाइम है ना, वट टाइम इत्थे देखो विल द ऑफिस, विल लग गया द ऑफिस मतलब कि इंटैरोगेटिव है, आपां द ऑफिस अगे करांगे, विल मतलब कि हेल्पिंग वर्ब है जिहड़ी बाद दे विच। वट टाइम द ऑफिस विल है तो विल दा बन गया वुड, वो आपां चेंजेस कीते सी, वुड उस तो बाद अगे क्लोज, वुड क्लोज दैट ईवनिंग। दिस दा दैट ये आप पिछली एक्सरसाइज दे विच कीता है, क्योंकि जो आप रिपोर्टेड बनाने दिस दा दैट यैसटरडे दा द प्रीवियस डे आप सारे चेंजेस किए सीगे काफ़ी, मतलब पहला जी अपनी एक्सरसाइज हुई सी 132 तो 136 दे विच ही है, तो वो सारे चेंजेस ने जिहड़े होने दिस दा बन गया दैट, तो बन गया रॉबर्ट आस्क्ड वट टाइम, रॉबर्ट ने पूछा वट टाइम द ऑफिस वुड क्लोज दैट ईवनिंग, कि उस ईवनिंग, क्योंकि आप एक हफ्ता पहला की गल कर रहे हैं। इत्थे दिस तां लिखिया होया है, वो विल भी तां लिखिया होया है क्योंकि ये है जिहड़ा रॉबर्ट ने जिस वक्त ये शब्द बोले सीगे ये उस वक्त दे एज इट उदां ही लिखे हुए ने, मतलब कि डायरैक्ट स्पीच दे विच ने। आपां इनडायरैक्ट दे विच लिख रहे हां क्योंकि हफ्ता पहलां बोले गए ने, तां करके आपां सारा कुछ पास्ट दे विच करना है। टेंस भी चेंज करना, जे किते टेंस चेंज करने की जरूरत हुई आपां नूं पता है टेंस पिछले उहदे विच ही आपां तुहानूं दस्से नेगे। अगे देखो फस्ट अ पुलिसमैन टू क्रिश्चन, जिहड़ा पुलिसमैन है क्रिस्टोफर नूं कह रहा है, क्रिस्टोफर नूं की कह रहा है, कहना स्टॉप शॉटिंग, चिल्लाना बंद करो, तो आ गया टेल। हुण देखो इत्थे रूल है जिहड़ा ये आ गया, किसी नूं कुछ करन दे लई कहना टेल या आस्क समवन, किसी नूं कुछ कहना टू डू समथिंग, कुछ करन दे लई। हुण इत्थे की करन दे लई कहा गया, इसनूं शॉटिंग है रौला पाउणा, जिहड़ा स्टॉप चुप करन दे लई कहा गया भी स्टॉप हो जा, चुप हो जा, तां करके कहा किसी ने सब्जैक्ट अ पुलिसमैन ने कहा टेल टोल्ड, किसनूं कहा क्रिस्टोफर नूं कहा, की कहा टू डू समथिंग मतलब कि टू स्टॉप, टू डू दा मतलब टू स्टॉप हो जा, भी की कर तू स्टॉप हो जा, टू डू भी स्टॉप कर बंद कर, समथिंग की करना बंद कर, शॉटिंग, तो इत्थे ये आ गया। सैकंड देखो टीसा, टीसा की कह रही है इट वॉज मी, कहती ये मैं ही सी, आई एट ऑल द केक येस्टरडे, मैं कल सारा केक खा गई, आई एट ऑल द केक येस्टरडे, एडमिट ये गल एडमिट कर दी, स्वीकार कर दी है भी सारा केक कल मैं खा गई। हुण देखो सैकेंड है, सैकेंड वाला कर रहे हैं आप, इस दे विच की रूल अप्लाई हो, वी कैन यूज ING फॉर्म, असी ING फॉर्म का यूज कर सकते हैं आफ्टर एडमिट, अपोलोजाइज फॉर इकट्ठा, अपोलोजाइज जो आप किस तो माफ़ी मंगते हैं ना अपोलोजाइज कह के, तो अपोलोजाइज के नाल फॉर का यूज होंगे, ये याद रखियो, जे किते नहीं भी दिता होंगे तो आपने वो लाना है अपोलोजाइज फॉर। इस तरह इंसिस्ट ऑन, किसी चीज़ पर जोर देना, इस दे नाल इंसिस्ट दे नाल भी ऑन का यूज होंगे, एंड सुजैसट किसी को सुजैसट करना, जो ये वाले होना तो आप जो रूल है की अप्लाई करते हैं, वी कैन यूज ING फॉर्म आफ्टर, इन्हां वर्ब तो बाद एडमिट तो बाद अपोलोजाइज फॉर तो बाद, तो आप ING फॉर्म का यूज करते हैं। जिस तरह देखो
जिस तरह देखो टीसा इट वॉज मी, सब तो पहले टीसा तो आ गया, उस तो बाद वर्ब लावांगे आप एडमिट एडमिटेड। हुण इस वर्ब तो बाद आप ING फॉर्म का यूज़ करना। देखो इन्होंने कहा ING फॉर्म। हुण फॉर्म की अपनी एक खाण की गल करिए, आई एट ऑल द केक यस्टरडे, तो इसनूं आप ING फॉर्म ईटिंग, तो टीजा एडमिटेड ईटिंग। बाकी जिहड़ा रह गया सारा लिख देंगे ऑल द केक द डे बिफोर, यस्टरडे का या तो द डे बिफोर या फिर द प्रीवियस डे, कुछ भी लिख दो तुसीं। ये मैं तुहानूं लिखवाई भी सी। अगे थर्ड एडारियन। एडारियन की कह रहा है आई एम सॉरी, कहना आई एम सॉरी आई वॉज रूड, आई वॉज रूड, कहना मैं माफ़ी चाहना मैं बहुत ज़्यादा रूड सीगा। अपोलोजाइज, देखो यही रूल आ गया अपोलोजाइज। अपोलोजाइज आप फॉर का यूज़ करांगे, ING फॉर्म का यूज़ कर लांगे। हुण देखो एडारियन सब्जैक्ट है, एडारियन अपोलोजाइज्ड फॉर, इस दिन फॉर का यूज़ कर लांगे। हुण इस तो बाद आप वर्ब की फस्ट फॉर्म के नाल ING का यूज़ करना है। हुण इत्थे मेन वर्ब हैगी वॉज, हुण आपां वॉजिंग है ना या इजिंग एमिंग तो कर नहीं सकते होंगे, तो उसकी फॉर्म होंगी है बी, तो बी फॉर्म हो गई फस्ट, तो बी दे नाल ही ING लावांगे बी दी फॉर्म, क्योंकि इत्थे वॉज है तो करके एडारियन अपोलोजाइज्ड फॉर बीइंग रूड। इत्थे वर्ब की फस्ट फॉर्म के नाल इहड़ा वॉज है इस दे नाल समझो यह ING फॉर्म लगी बीइंग रूड। चौथा देखो, चौथे दे विच की है सिमन टू सूसन। जिहड़ी सिमन है वो सूसन नूं कह रही है, की कह रही है वुड यू लाइक टू ज्वाइन मी फॉर लंच, कि तुसी मैनू लंच ना मतलब लंच ते ज्वाइन करना पसंद करोगे, मतलब मेरे नाल लंच करना पसंद करोगे, वुड यू लाइक टू ज्वाइन मी फॉर लंच। चौथा है इस दे विच की रूल अप्लाई होना, देखो चौथे दे विच वी कैन ऑलसो यूज़, इस दे विच भी इस वाला रूल ही, वी कैन ऑलसो यूज़ एन ऑब्जैक्ट प्लस टू इन्फिनेटिव। ऑब्जैक्ट तो बाद टू इन्फिनेटिव का आप यूज़ करांगे जो अपने कोल जिहड़ी फॉर्म है वो एडवाइज होवे, इनवाइट होवे, रिमाइंड होवे, वार्न होवे। इत्थे अपने कोल हैगी इनवाइट, इनवाइट किया। तो सब तो पहला सब्जैक्ट आ गया, किसने इनवाइट किया, सिमन इनवाइटेड। किसनूं इनवाइट किया, ऑब्जैक्ट सूसन। तो ऑब्जैक्ट तो टू इन्फिनेटिव, उसनूं इनवाइट किया काहदे वास्ते, वुड यू लाइक टू ज्वाइन, टू ज्वाइन ज्वाइन करने वास्ते। तो करके किधर गया, सिमन इनवाइटेड सूसन टू ज्वाइन, उस तो बाद मी दा बन गया हिम, क्योंकि जिहड़ा सूसन सिमन है एक अपने लिए लड़का है, उत्थे मी सीगा क्योंकि उसने खुद कहा सी कि तू मैनू ज्वाइन करेंगी। हुण आपां उन्हां दी गल हफ्ते बाद दस रहे हैं कि उसने उसनूं कहा कि वो उसनूं ज्वाइन करूगी, तां करके मी दा इत्थे हिम है जिहड़ा ये बनिया फॉर लंच। अगे सेम आ गया, क्वेश्चन टैग हटा देना जिस तरह कि मैं पहलां तुहानूं दस्सिया। पंजवां मार्टिन टू नैंसी। मार्टिन कह रहा है नैंसी नूं, की कह रहा है, कहना डिड समवन रिंग यू एन आवर अगो, कि किसी ने एक घंटा पहला थोनू रिंग की सी, पास्ट इंडेफिनेट है ना। तो पंजवां यस नो क्वेश्चन वाला है, याद आ गया होना, इफ ते वैदर आप यूज़ करते हैं यस नो क्वेश्चन वाले दे विच, जिसका आपां नूं आंसर है यस और नो दे विच आउण दी उम्मीद हुंदी है, तो आप इफ या वैदर का यूज़ करते हैं। क्योंकि जेकर WH फैमिली हुंदी है किसी वेयर वैन वाई, उत्थे आप WH फैमिली का ही यूज़ कर लैंदे आ, और जिथे WH फैमिली नहीं हुंदी, जिस तरह कि इस दे विच डिड तो स्टार्ट हो रहा क्वेश्चन टैग है, तो जो आप इनडायरैक्ट स्पीच के उसमें चेंज करते हैं तो आप उत्थे जिथे दैट लगाने होंगे उसकी जगह पर आप इफ या वैदर का यूज़ करते हैं। तो मार्टिन ने कह रहा है, मार्टिन आस्क्ड है ना, मार्टिन पूछ रहा है, मार्टिन आस्क्ड नैंसी, नैंसी तो पूछ रहा है, की पूछ रहा है इफ या वैदर, इफ या वैदर। उस तो बाद इसमें आप इंटैरोगेटिव तो बना देंगे, पहला सम बना जू इफ समवन, क्योंकि यह पास्ट इंडेफिनेट है तो आप पास्ट परफेक्ट करता, इफ समवन हैड रंग यू। इत्थे यू सीगा ना क्योंकि वो खुद बोल रहे थे, इत्थे मार्टिन, इत्थे मार्टिन सीधा डायरैक्ट नैंसी नूं बोल रहा है। इत्थे आपां उन्हां दी गल दस रहे कि उसने उसनूं है ना, कि उसने उसनूं, तां करके समवन हैड रंग हर। ये जिहड़ा यू है ये मतलब नैंसी दे लई यूज़ कीता सी मार्टिन ने। हुण आपां नैंसी लई या मार्टिन लई दोनों के लिए ही हिम शी हर यूज़ कर रहे हैं, तां करके इत्थे हर आ गया, रंग हर ऑन एन आवर अगो। अगे छेवां पीटर, पीटर कह रहा है, कहना आई रियली मस्ट लीव, मैनू कहना रियली मस्ट लीव, मैनू कहना जाना पऊगा। इंसिस्ट पूरा जोर दे के कह रहा है, इंसिस्ट देखो इंसिस्ट ऑन, इंसिस्ट के नाल आपां ऑन का यूज़ करते हैं, उस तो बाद ING फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो पीटर, पीटर कह रहा है, तो पीटर आ गया पहला, फिर उस तो बाद वर्ब इंसिस्टेड, उस ऑन, इंसिस्टेड ऑन
ਫਿਰ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ING। ਇੰਸਿਸਟਡ ਔਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਾਣ ਤੇ, ਲਿਵਿੰਗ। ਪੀਟਰ ਇੰਸਿਸਟਡ ਔਨ ਲਿਵਿੰਗ, ਪੀਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਾਣ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ 136B ਚੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਨੇ 135 ਚੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਨੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕਾਬਲ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਦੱਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੀਆਂ 132 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 136 ਦੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰੂਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਨੰਬਰ 23। ਜੇਕਰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।